Thanks a lot to everyone for joining this session. And on, I think already Aruna ji and Praveen ji have outlined the big picture of what actually has been going on the budgetary front in the current situation, and what was expected, and how actually what is the reality, and the huge gap between both of these. So I will now take us ahead for the session on health. We'll having four sub sessions within the social sector session on health, on pensions, on food security, and on education. And activists from all these sectors are here and will be making the presentations. And of course, after the these four have been presented, we will go for the discussion. So we'll start start with the health session. My colleagues from Jan Swasthya Abhiyan, we have put together on behalf of Jan Swasthya Abhiyan a note and a presentation on the status of the Union Health Budget 2021-22 and the demands on behalf of the people of this country regarding the health sector. And as we know, the COVID-19 pandemic has hit the entire world and our country in an unprecedented manner. And actually, the COVID-19 pandemic has acted like an X-ray for our health system and has told us, what is the actual situation regarding our both public health services and the private healthcare sector. And therefore, there was a huge expectation that this year, the health budget should reflect this priority of strengthening public health services. But the reality, as Praveen has briefly pointed out, and as we will be discussing, is something very different. Instead of a real increase, we have been given an illusory kind of illusion of increase. And I think my colleagues Richa and Indranil will be talking about this. So I think we'll start the presentation on health, which will go on for about 20 minutes, and then we'll have about 10 minutes for clarifications and discussion and comments. So can you, Nancy, would you be sharing the screen, or should I share? Indranil will start with the some initial part of the presentation, followed by Richa, and then I will conclude. जन सरोकार और जनता पार्लियामेंट का ये जो उद्योग है, ये जो इनिशिएटिव है, आई I'm very deeply honored to be part of this. मैं आभारी हूँ आप सबका, और जैसे को अपना जो राय है इसमें रखने का लोग मौका दिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है स्वास्थ्य को लेके आज के तारीख में बात करना। जिस तरह से ये पैंडेमिक दर्शाया है, जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था का जो चरमराता छवि इस पैंडेमिक से उभर के आया है, हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे कि जो ये बजट होगा 2021-22 का, उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कुछ अच्छे ठोस कदम लिया जाएगा, कुछ एलोकेशंस बढ़ेंगे। और हम लोग देखे जब बजट स्पीच में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बहुत उम्मीद के साथ बताए कि 137% इंक्रीज हुआ है बजट पे, तो हम लोग खुश हुए थे थोड़ा सा शुरू में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कि अच्छा चलो, कुछ बहुत दिनों के बाद स्वास्थ्य में कुछ ऐसा बदलाव शायद आएगा, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग आंकड़ा देखना शुरू किए और धीरे धीरे जैसे ये कार्टून में दर्शाया जा रहा है, तो वो बजट को अनपैक किए, उसका जो बड़ा 137% का जो जुमला हमारे सामने आया, हम लोग एक एक करके नंबर्स निकालते गए और पता चला कि 137% तो दूर, बहुत ही कम बढ़ोतरी हुआ है बजट में, खास करके जो ठोस स्वास्थ्य का इश्यूज है। मैं उस पर जाना चाहूंगा। अगला स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो जो अगर नंबर्स को थोड़ा सा उसमें अच्छे से देखेंगे, जो 137% का जो पूरा जुमला है उसको अगर अनपैक करने का कोशिश करें, तो
एक तो स्वास्थ्य और जैसे वेलबींग का बात किया गया, ऐसे चीजें अब इसमें जोड़ा गया है जो असल में केंद्र सरकार का खर्चा ही नहीं है। क्लिक करते रहना पड़ेगा प्लीज, दो कुछ चीजें और, हाँ शुक्रिया, क्लिक करते रहिए प्लीज। हाँ, तो इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है ये जो जोड़ा गया, करीब 49,000 करोड़ का आवंटन जो इसमें दिखाया गया, वो है फाइनेंस कमीशन का ग्रांट जो लोकल बॉडीज को जाने वाला है। हम सबको पता है कि फाइनेंस कमीशन का पैसा जो है केंद्र सरकार का नहीं है, वो देश का है। केंद्र सरकार को फाइनेंस कमीशन कुछ पैसा देते हैं काम के लिए, जैसे स्टेट्स को भी देते हैं। जो रिसोर्सेज जो मोबिलाइज होता है अलग अलग सोर्स से, उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार को मिलता है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार को मिलता है, कुछ हिस्सा लोकल बॉडी। तो आप ऐसा पैसा अपना क्लेम कर रहे हो जो आपका है ही नहीं, वो देश का है। हाँ, तो ये बहुत ही एक मतलब खतरनाक एक टेंडेंसी है, बहुत उसको गहराई से देखना जरूरी है। इस पैसे को अगर हटा दिया जाए तो एक बड़ा जो चंक है, करीब 60,000 करोड़ एलोकेशन हुआ है जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर जल शक्ति मिशन का एलोकेशन है। क्लिक करते रहिए प्लीज, उसमें और चीजें, जल शक्ति मिशन का एलोकेशन है, वो सारे चीजें इसमें डाला गया है। और हमारा जो पिछले कुछ समय का अगर देखेंगे तो ये जो 60,000 करोड़ का एलोकेशन और 21,000 से बढ़ा के एकदम 60,000 किया गया है, ये आज के हिस्ट्री में सबसे बड़ा इंक्रीज इन एलोकेशन इन एनी स्कीम इन पब्लिक इन यूनियन बजट ये है। लेकिन हमारा ये बहुत एक समझ ये है कि शायद ये पैसा पूरा रूरल ड्रिंकिंग वाटर को प्राइवेटाइज करने के पीछे खर्चा हो सकता है। और हमारा उम्मीद रहेगा कि वी शुड फाइट दिस आउट एंड नॉट लेट रूरल ड्रिंकिंग वाटर सिनेरियो बी प्राइवेटाइज्ड। ये दो खास मुद्दे हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन हुआ है, जो बहुत जरूरी था। लेकिन जो टोटल रिक्वायरमेंट है कि अगर कोविड वैक्सीन को यूनिवर्सली एक्सेसिबल किया जाए, सबके लिए फ्री एक्सेसिबल किया जाए, ये आवंटन जरूरत से काफी कम है, आधा से कम है इसमें। तो अच्छा, अब अगर ये सारे चीजों को हटा लिया जाए, वन टाइम चीजें जो हेल्थ का है ही नहीं हिस्सा, उसको जोड़ना, और जो पैसा आपका नहीं था उसको जोड़ना, ये सारे चीजों को अगर हम हटा ले तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री का और आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, इनका सारा चीजें अगर इनका कितना खर्चा है उसको अगर देखेंगे तो नॉमिनल उसमें ये सिर्फ 11% इंक्रीज दिखता है। और इससे अगर वो इन्फ्लेशन को आप हटा लेंगे तो दिस कम्स टू अराउंड 6.75% इंक्रीज। काफी, जो 137% से लेके हेल्थ का खर्चा जो है घट के हमारा 7% से कम हो जाता है। तो अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रेकमेंड किए थे 21-22 बजट के लिए कि 1.6 लाख करोड़ आप खर्चा कीजिए स्वास्थ्य के लिए। ये जरूरी है इस पैंडेमिक में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। आधा भी नहीं खर्चा एलोकेशन हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर जैसे केंद्र सरकार का बजट जीडीपी के उसमें तुलना करके देखेंगे तो जैसे ही मोदी सरकार आए उसके बाद हम लोग देखे कि 15-16 में केंद्र सरकार का बजट 0.26% हो गया घट के, जो आज तक के इतिहास में एक सबसे कम होगा। फिर धीरे धीरे वो स्टेबल होके 0.3%, 3.1% के आसपास है। इस बार जैसे डॉक्टर झा जो परिप्रेक्ष्य में बताए कि जीडीपी घट गया है देश का और टैंकिंग ऑफ जीडीपी हुआ है, ग्रोथ रेट कम हो गया है, उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये जो अभी 0.35% दिख रहा है जीडीपी का, वो असल में जीडीपी घटने के कारण से है। एक एक्सपेंडिचर उतना बढ़ा नहीं है सेंटर का। तो
और अगर रियल टर्म्स में भी देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट का एलोकेशन पिछले 7-8 साल में, अगर लेके इन्फ्लेशन को हटा के हम लोग देखें तो सीधा सीधा ये निकल के आता है कि 2011-12 में जितना खर्चा केंद्र सरकार का हो रहा था उससे थोड़ा ही अब तक बढ़ा है। जब जहां पे बात चल रही थी कि 30% करके इंक्रीज करना पड़ेगा हर साल यूनियन बजट को, ताकि 2.5% ऑफ जीडीपी सेंटर एंड स्टेट लोकल बॉडीज टुगेदर खर्चा हो स्टेट में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक चीज इससे साथ जुड़ते हुए मैं बताना चाहूंगा, हर पिछले 4-5 साल में ये हो रहा है कि केंद्र सरकार जो आवंटन करते हैं उसका एक उससे रिवाइज्ड एस्टिमेट ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेट और पैसे का डिमांड करते हैं और ज्यादा खर्चा उनको चाहिए होता है, और लेकिन वो फिर अगले साल फिर आवंटन में केंद्र सरकार घटा देते हैं। तो सीधा सीधा जो कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहां पर स्टेट ज्यादा पैसे का मांग कर रहे हैं, वो दिखता है कि हर बार बजट में कटौती होता है या थोड़ा सा बढ़ोतरी होता है, लेकिन बाद में उसको रिवाइज करना पड़ता है। उस सिमिलर एक पिक्चर जो है नेशनल हेल्थ मिशन का, अगर आप बजट एलोकेशन देखेंगे उसमें से निकल के आता है। धीरे धीरे पिछले 4-5 साल में हम लोग देखे हैं कि एनएचएम का बजट बढ़ ही नहीं रहा है, और बहुत जरूरी चीजें इसमें है एनएचएम के तहत, जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ के बहुत सारे बच्चों का स्वास्थ्य को लेके बहुत सारे मुद्दे वो सफर कर रहे हैं। और जो की कंपोनेंट्स है जिसके बारे में बाद में रिचा और विस्तार से बताएंगे, वो सारे सफर कर रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा, अगर 2020 का सितंबर तक का जो आंकड़ा अभी तक अवेलेबल है, हमको सीधा दिखता है कि पिछले वर्ष में सितंबर तक के महीने में झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे स्टेटों में एनआरएचएम का आरसीए अन्य लोगों को बहुत जगहों पे सेवाएं नहीं मिली गई, सेवाएं नकारी गई, कोविड के पेशेंट्स को भी, कोविड के अलावा अन्य भी मरीजों को। और ये स्पष्ट दिखाई पड़ा कि ये जो स्कीम है, ये लोगों को, ये इंश्योरेंस बेस्ड जो स्कीम है, ये लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में नाकाम रही है। और इसलिए हमारा मानना है कि इस स्कीम को वाइंड अप करके इसके बजाय, जो कोविड की एपिडेमिक के दौरान कई सारे अनुभव आए हैं राज्यों में, कुछ राज्यों ने प्राइवेट अस्पतालों को टेक ओवर किया है, कुछ राज्य सरकारों ने कोविड के दौरान प्राइवेट अस्पतालों की फीस को रेगुलेट करने के प्रयास किए हैं। इससे और आगे बढ़ते हुए जो है हमको पीएमजेएवाई के बजाय एक ऐसा सिस्टम लागू करना चाहिए जिसके तहत प्राइवेट अस्पतालों के जो बेड्स होते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा ये पब्लिक कंट्रोल में आए, और इसके तहत लोगों को मुफ्त और बेहतर प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी, जो कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करेगी। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने देखा है कि एक्चुअली जरूरत रही है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बड़े स्तर पे इसका विस्तार किया जाए, इसको मजबूत किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, जहां जहां पे हमें दिखाई पड़ा है कि कोविड के दौरान एक्चुअली पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की कितनी आवश्यकता होती है और वो कितनी क्रिटिकल होती है, एक लाइफलाइन है समाज का, ये हमको दिखाई पड़ा। लेकिन इसके तहत इस बजट में हमको उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई पड़ा। दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन, जिसमें बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन्स को भी जो है प्रमोट किया जा रहा है, ये हमको इस सरकार की एक नीति दिखाई पड़ रही है। ये शायद सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि तमाम सोशल सेक्टर में इसी प्रकार से परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है इसमें हम लोग चर्चा में और इसकी गहराई में जाएंगे। तो अभी हम लोग एक 7-8 मिनट इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट सत्र में जाएंगे। तो अगर कोई मुद्दे हैं तो चैट बॉक्स में अमूल्य और CS वर्मा जी ने कुछ पॉइंट्स डाले हैं। आपको अगर इसके बारे में कुछ संक्षेप में बोलना है तो आप बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो इस बार का जो स्टेट बजट भी आया है, और जो रिचा और इंद्रनील और अभय ने जो बातें की बजट को लेके, ये भी वो पूरा विजन जो सेंट्रल का है वो स्टेट के बजट्स में दिख रहा है। और खासकर जो पूरा
प्राइवेटाइजेशन का जो पूरा इश्यूज है, खासकर जो नीति आयोग का जो प्रपोजल था फरवरी में, जिसको पिछली सरकार ने अपोज किया था, वो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इनोवेशंस के नाम पे देने का हैंडओवर शुरू हुआ। और इंदौर में उसकी एक अभी जस्ट 10 दिन पहले ही शुरुआत हुई है कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो व्यापम के आरोपी थे उनको हैंडओवर करने की प्रोसेस शुरू हुआ है, MOU शुरू हुआ है। दूसरा मुझे लग रहा है कि बहुत एक स्टेप है जहां जो राजस्थान ने जो राइट टू हेल्थ इस बार के बजट में जो बिल की बात की है, राइट टू हेल्थ की बिल की, मुझे लग रहा है कि एक वेलकम स्टेप है और वो उसके प्रयास भी करने चाहिए। जो महत्वपूर्ण बातें जो बजट में जो पूरा कंफ्यूजन था और जो 137 करोड़ वाला, मुझे लग रहा है इंद्रनील आपने उसको अच्छे से डाला। और वो स्टेट के बजट में भी जो NHM का पूरा पैसा है वो हमारे अलग अलग स्टेट के बजट में भी दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि हमें इस चर्चा से आगे के कैंपेन के रूप में स्टेट में भी जो बजट है और जिसका ये इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं पैसा नहीं, खासकर NHM का पैसा में वो दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है ये भी हमें अपने स्टेट्स के बजट को भी इसी लेवल पे जैसे एनालाइज करके और हमको उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्योंकि NHM के पैसे। जी ठीक है, वर्मा जी आपको कुछ इसमें ऐड करना है? ये चरण S वर्मा, इनको थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए। अभय जी, यस, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये सभी प्रेजेंटेशंस में ये चीज को हाईलाइट भी किया गया है कि कैसे गवर्नमेंट बजट को फ्रीज कर रही है और जो आंकड़े इस तरीके से मिसलीड करने के तरीके से जो है आंकड़े को प्रस्तुत कर रही है। आप ये देख रहे हैं कि 1000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को फंक्शनल करने की बात हो रही है, हर साल उसको बार बार आगे के लिए खिसकाया जा रहा है, लेकिन बजट उसमें नहीं दिया जा रहा है। दूसरा ये चीज है कि पूरे एपिडेमिक के दौरान ये प्राइवेट सेक्टर का अगली चेहरा बार बार बेनकाब हो रहा है कि किस तरीके से ओवरचार्जिंग और माल प्रैक्टिसेस सब सामने आ रही हैं। फिर भी अभी जो कोविड वैक्सीन के लिए अभी फिर से प्राइवेट सेक्टर को बहुत बड़े तरीके से इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की मंशा बहुत साफ है कि प्राइवेट सेक्टर को पे ज्यादा भरोसा या उसके मुनाफे के बारे में ज्यादा चिंता लग रही है और अपना जो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग है उसकी तरफ को मुझे लग रहा है अभी उनकी उदासीनता बनी हुई है, जो कि एक चिंता की बात है। और हमारे अपने जो भी कैंपेन्स आगे बने उसमें हमें इन चीजों को मुख्य रूप से ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ेगी। थैंक यू। जरूर, धन्यवाद अमूल्य और वर्मा जी, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो राज्यों के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ाया जा रहा है और इवन नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बट इवन CHC के स्तर पे प्राइवेटाइजेशन मध्य प्रदेश का बहुत गंभीर मुद्दा है। और ये पूरा कोविड के दौरान जो निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट क्षेत्र है इसको किस तरीके से इसने एक्चुअली अपने मुनाफे बरकरार रखे हैं और इनको रेगुलेट नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है वैक्सीन का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं उसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर जन स्वास्थ्य अभियान का जो पोजीशन है उसको लेकर के हम जल्दी ही आपके बीच में और भी जन स्वास्थ्य अभियान की तरफ से जानकारी लेके आएंगे। और मानसिक स्वास्थ्य का जो एक सवाल किसी साथी ने रखा है, शशिकांत भालेराव, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप देखिए कि पिछले साल पूरे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए यूनियन बजट में सिर्फ 40 करोड़ रुपए का प्रावधान था और इस साल भी सिर्फ 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आप ये सोच लीजिए कि 138 करोड़ लोगों के देश में 40 करोड़ रुपए का मतलब है प्रति व्यक्ति एक 30 से 35 पैसे साल में मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारी केंद्र सरकार खर्च कर रही है। इससे क्या होगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे क्योंकि आगे के सेशन में जाना है। काफी सारे मुद्दे हमने संक्षेप में रखने की कोशिश की है। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार का जो बजट है किस तरीके से एक भ्रामक बजट रहा है स्वास्थ्य के बारे में। क्लेम किया गया 137% पर एक्चुअल इंक्रीज सिर्फ 6% के करीब था। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अगर हम नॉमिनल टर्म्स में बोलेंगे तो मुश्किल से 11% इंक्रीज है, जहां था 11% दिखाया गया 137%। ये सरकार की शायद सभी सेक्टर्स में इनके काम का तरीका रहा है। तो इसको और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को जहां हर तरह से कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में नाकाम रही है, या नाकाम से भी ज्यादा इनकी इच्छा ही नहीं है। और पब्लिक हेल्थ सिस्टम का स्ट्रेंथनिंग जो कोविड के दौरान
इतने स्पष्ट रूप से सामने आया, वो विस्तार और वो स्ट्रेंथनिंग नहीं हुआ है। तो ये हमें इसकी मांग जोरदार तरीके से उठानी पड़ेगी। संजीव ने एक मुद्दा उठाया है कि 35,000 करोड़ रुपए किस तरह किस लिए घोषित किए गए। ये मुझे लगता है कि वो एक मुद्दा है। एक्चुअली वैक्सीन के लिए जो अमाउंट एलोकेट किया गया है, इसके तहत राज्यों को वो वैक्सीन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन कुछ पॉपुलेशन का जो एक हिस्सा है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको एक्चुअली फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह को, लेकिन बाकी एक बड़े हिस्से को पैसे दे करके वैक्सीन लगवाने का भी ये प्रावधान किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियान की मांग है कि सभी जो जिनको आवश्यकता है वैक्सीन के, ऐसे सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो ये भी एक मुद्दा है। तो मुझे लगता है अभी हम लोग ये वाइंड अप करेंगे ये सेशन स्वास्थ्य का। हमारा आधे घंटे का समय पूरा हो रहा है और आगे के सेशंस को भी हमें इसी तरीके से समय से ये करना है। तो नेक्स्ट जो सेशन है वो पेंशन के बारे में है। तो नैन्सी और रश्मि, आप नेक्स्ट सेशन के मॉडरेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन पे जा सकते हैं। धन्यवाद।